Okay, a very good evening, guys. Am I completely audible? Kindly switch on your cameras. Am I completely audible, guys? Okay, Mahalakshmi, but switch on your cameras. खुशी, am I audible? जरा मेरे से कुछ बात कर लो. I want to check the system. Am I audible? Say yes. मुझे सुनना है आवाज किसी का. Yes, sir. All right. So there is a problem with my earphone. That's what I wanted to check. It's coming from the speaker. Don't know why. ठीक है. मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? Okay, great. So guys, we have started with chapter number 6. Am I correct? We started with the chapter which is planning. And before I proceed with the syllabus, I just want to tell you that your test will be scheduled soon. So start studying. आपका test schedule हो जाएगा. First chapter, second chapter, third chapter and fourth chapter का. Sounds good? These are the first 4 topics जिसका आपको टेस्ट शेड्यूल होने वाला है. सो उसके थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल नॉट प्रैक्टिस. हम उसके थोड़े से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वो जो बड़े क्वेश्चंस है उसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेंगे. इट विल बी इन द नेक्स्ट वीक. सो आई वांट यू टू स्टार्ट स्टडिंग द स्टडी टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट 4 टॉपिक्स. आई होप आई एम कंप्लीटली क्लियर. अंश धोते आप बहुत दिन एब्सेंट थे. You were absent for a lot of lectures, correct na? Or you were present? Oh, you were absent. So I hope you have checked the recordings. ठीक है. So दोस्तों, in today's session, if you remember our planning session, we started with essay 300, planning and audit of financial statement. And we met, अभी मिले थे हम, संडे को क्लास में मिले थे माटुंगा वाले, और वही लेक्चर मैंने सैटरडे को पार्ला में लिया था. सो वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक. द टॉपिक विल नॉट बी फिनिश्ड इन टुडेज लेक्चर, बट इसके बाद वाले लेक्चर में ये टॉपिक पक्का खत्म हो जाएगा, 6वां चैप्टर प्लानिंग का. तो इन आई एम गोना स्टार्ट इमीडिएटली टुडे विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. अंडरस्टैंड, ये जो चैप्टर है इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है. ऐसे 300 जो हो चुका है, planning and audit of financial statement. Then essay 240, auditors responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. I repeat, auditors responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. जब fraud होता है तो हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हैंडल करने की. Then after we finish this, we will start with essay 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. Now if I talk of essay 250, essay मतलब IASA, international standard on auditing. मैं वो I नहीं बोलता बार बार. So essay बोला तो it is IASA, understand it. Essay 250, auditors responsibilities regarding rules and regulations. Now understand, let us talk with essay 240. 240 नामक essay हम चालू करते हैं. ठीक है. Consideration of frauds in an audit of financial statement. When there is a fraud, what is our responsibility? Now, first of all, what do you mean by the term fraud? इस पे बात करते हैं दोस्तों. Whenever I am saying that, okay, there is a fraud, what exactly I want to say? मैं fraud से मतलब exactly क्या बात करना चाहता हूँ? What I want to say and speak regarding frauds. Fraud is nothing but intentional error. There is a difference between an error, that is misstatement, और fraud में फर्क है. Misstatement मतलब गलती which is unintentional, and whenever I am talking of fraud, it is completely intentional. जब मैं ये बात करता हूँ कि there is a fraud, then at that point of time I want to say that it is an intentional thing which is done. समझा मैंने क्या बोला रमी? Fraud is always intentional. जब भी कुछ गलत हुआ है और जो जानबूझ के हुआ है उसको हम फ्रॉड बोलते हैं. गलत हुआ है लेकिन जानबूझ के नहीं हुआ उसको हम गलती बोलते हैं. First of all, understand the difference between a fraud and a mistake or a misstatement. Mistakes का प्रोफेशनल नाम है misstatement.
So whenever I talk that there is a fraud, it is a galti only, but it is done purposefully, then it is considered as a fraud. And whenever I talk of misstatement, it is a galti, but it is unintentional. Intention matters a lot. Intention matters a lot. फॉर एग्जाम्पल उधर देवजोत के सामने कोई बंदा आके उसको मारने लगा तलवार वलवार लेके, तो देवजोत ने क्या किया, नीचे एक पत्थर उठा, उसके सिर पे दन करके मारा, उधर का उधर बंदा मर गया, कोर्ट केस हुई। देवजोत आपने इसका मर्डर क्यों किया? देवजोत बोला काय का मर्डर किया? इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस एक्ट। मैं तो जानता भी नहीं जिसने मुझे मारा, लेकिन तलवार लेके वो मुझे मारेगा, तो आज कोर्ट में वो नहीं, मैं मर गया रहता अगर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया रहता तो। सो इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस में मैंने नीचे का पत्थर लेके उसके सिर पे मारा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसको मारना नहीं चाहता था, आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू गेट रीड ऑफ मी। लेकिन अभी क्या फोर्स से लग रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, इट वॉज डन इन सो नैनो सेकेंड ऑफ टाइम। तो कोर्ट चेक करेगा देवजोत का पास रिकॉर्ड, देवजोत क्रिमिनल है क्या? नहीं, क्रिमिनल नहीं है, एसीसी का बच्चा है, पढ़ रहा है, ओके, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो मारने आया था वैसे भी टेररिस्ट था या कुछ भी था, ऐसे देवजोत को क्यों मारने था, रीजन पता नहीं किसी को। इन दैट केस देवजोत को छोड़ भी देंगे। क्यों छोड़ भी देंगे? मतलब सेल्फ डिफेंस में ऐसा बहुत बार होता है कि जिसको मारा वो वैसे भी कल्प्रिट ही था, ये बंदा पढ़ाकू है, ये इसका कोई पास रिकॉर्ड नहीं है, सेल्फ डिफेंस की एक्ट थी, छोड़ दिया। लेकिन ये देवजोत, उसको मारना ही था, उसको टपका नहीं था, हमारी बचपन की दोस्ती नहीं, दुश्मनी थी, खानदानी दुश्मनी थी, उसका मर्डर ही करना था मुझे। तो दोनों में बड़ा फर्क है। सेकेंड, इसमें फांसी भी हो सकती है किसी को ऐसी बात किया तो। फर्स्ट में उसको बाइज्जत बरी भी कर देंगे, ओके आपकी कोई गलती नहीं, ओके गेट आउट। दोनों में इंटेंशन का फर्क है। नो, इंटेंशनली जो भी एक्ट करता हूं मैं कुछ गलत पैसे के मामले में, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। और एनी अनइंटेंशनल एक्ट, उसको हम मिस स्टेटमेंट या गलती बोलते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम ऑन। पेज 162, खुशी जी को, खुशी कोहली, विराट सिस्टर, लेट अस स्टार्ट। सर सिस्टर मत बोलो सर, कुछ भी बोलो बाकी। करेक्ट ना? करेक्ट ना खुशी? Okay, whatever you want, you assume it in your mind. Go ahead. Misstatement in the financial statements can arise from either fraud or error. The distinguishing factor is whether the underlying action that resulted in the misstatement was intentional or unintentional. Fraud is an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. Fraud can be split into two types: fraudulent financial reporting, deliberately misstating the financial statements to make the company's performance or position look better or worse than it actually is; misappropriation, theft of a company's assets such as cash or inventory. Okay. Error. An error can be defined as an unintentional misstatement in financial statements, including unintentional, underline करना बहुत इंपॉर्टेंट है। unintentional, underline करो। Cool, go ahead. Including the omission of amounts or disclosures such as the following: a mistake in gathering and processing data from which financial statements are prepared, an incorrect accounting estimate arising from oversight or a misinterpretation of facts, a mistake in the application of accounting principles relating to measurement, recognition, classification, presentation, or disclosure. करेक्ट। सो अगर आपने ये दोनों को देख लिया अच्छे से, सो इफ यू टॉक ऑफ फ्रॉड, am I audible completely? Am I completely audible? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ। सो गाइस, इफ आई टॉक ऑफ फ्रॉड, पहला चीज है, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट by one or more individuals amongst the management, those charged with governance, employees, or even third parties, involving the use of deception. Deception का मतलब लिखो, to cheat.
involving use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. So whenever I'm talking of frauds, it is completely intentional. ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. And whenever there is an error, it is unintentional. You got what I'm trying to say? Go ahead. Go ahead. Director's responsibilities in respect of fraud. Okay. The primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with those charged with governance and the management. Underline karna. Fraud detection is not the primary responsibility of the auditor. I repeat. Fraud detection is not the primary responsibility. Always remember that. हम उधर ओपिनियन देने जाते हैं, लेकिन वहां फ्रॉड मिल गए तो सोने पे सुहागा, जबरदस्त, no problems at all. But to find out fraud is not our primary responsibility. The primary responsibility of the auditor is to give an opinion on the financial statements. Now, TCWG का मतलब क्या है guys? What is TCWG? Are you aware of that? TCWG को अंडरलाइन कर लो और वहां लिख के रखो. वो ये शब्द बहुत बार आएगा. अभी ये चालू हो गया. दोष चार्ज विद गवर्नेंस. TCWG मतलब दोष चार्ज विद गवर्नेंस. उधर एक शब्द है, एक दोष चार्ज विद गवर्नेंस. अंडरलाइन कर. TCWG मतलब दोष चार्ज विद गवर्नेंस. नाउ तेरे को समझने की भाषा में बड़े बाप की औलाद लिख ले उधर. बड़े बाप की औलाद. डोंट राइट दिस. बड़े बाप की औलाद मतलब क्या? ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटीज, together they come under the category of TCWG. Sounds good? Are you understanding this? Whenever I say who is a TCWG, it is nothing but those charged with governance. In other words, बड़े बाप की औलाद. Cool. इनकी नैतिक जिम्मेदारी है to control and detect frauds. Always remember that. Fraud detection is the primary responsibility of the managers and the TCWGs and not of the auditor. Cool. Go ahead. Now, how frauds can be stopped? This is achieved by. मतलब क्या? Frauds को हम रोक देंगे. कैसे? पढ़ो. This is achieved by implementing an effective system of internal control, reducing opportunities for fraud to take place, and increasing the likelihood of detection. Now, how can frauds be stopped? Frauds को हम होने से कैसे रोक सकते हैं? मैं बताऊं. Being vigilant. Now, what is the meaning of being vigilant? You need to be ultra careful. This is called as forensic audit also. Fraud का checking करने को forensic audit भी बोलते हैं. मतलब checking of frauds or reporting of frauds. Now, being vigilant मतलब you need to understand that there is no person who is there who is on. That is, there is a person who has not taken any leave. Now, my vigilance factor says that there can be a fraud here. ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कभी छुट्टी लेने की इच्छा नहीं व्यक्त करता. अगर ऐसा बंदा दिख रहा है जो 3-3 साल एक भी छुट्टी नहीं लेके पकड़े, इसका पूरा कुंडली देखना पड़ेगा. क्यों? देयर कैन बी अ रीजन दैट ही माइट हैव डन फ्रॉड्स एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी. 3 साल में एक भी छुट्टी नहीं, बहुत ज्यादा है. हाँ, कभी कभार साल भर में एक भी छुट्टी नहीं ली, ये भी हो सकता है. रेयर है बट हो सकता है. 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बंदे ने एक भी छुट्टी नहीं, हिज लीव्स आर गेटिंग लैप्स्ड. देयर इज अ सीरियस इशू. इतना कोई भी जॉब प्रेमी नहीं रहता. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको इतना जॉब उसका प्यारा रहेगा. ओनर भी नहीं है ऐसा करेगा, वो खुद छुट्टी लेगा. मतलब दिस इज बीइंग विजिलेंट. आई हैव फाउंड आउट सर्टेन थिंग बिकॉज ऑफ व्हिच आई फील दिस पर्सन. अन्विषा जाधव ने एक भी छुट्टी नहीं ली. अभी मैं उसकी स्क्रूटिनी पूरी चेक करूँ, क्या काम करे पूरा शिद्दत से देखूंगा. 3-3 साल अन्विषा छुट्टी नहीं लेती. इतना प्यार है आपको आपके बॉस से. अजीब लग रहा है मुझे. तेरे को भी अजीब लगना चाहिए एज एन ऑडिटर. डोंट यू फील सो गाइस? मुंडी अगर तेरे को लगता है हाँ जयेश जो बोल रहा है सही है. Yes. If I'm an auditor and find a person who has not taken a leave for 3 odd years, not even a sick leave, no nonsense, no leave only, I will feel something is fishy here. 3 साल हो गए, एक बंदे ने छुट्टी नहीं ली. हाँ, मतलब उसमें वो जो नॉर्मल 15 अगस्त, गांधी जयंती, दृश्यम डे, ये सब हो सकता है. बट खुद की छुट्टी, ये भी एक मैटर होता है. ऑफिस चल रहा है लेकिन मैं नहीं हूं उधर. कॉमन सेंस है, ये छुट्टियां होती है गाइस. जैसे
Go ahead. Creating a culture of honesty, ethical behavior, and active oversight by those charged with governance. Correct. Culture of honesty. Underline करना. सब लोग सच बोलेंगे तो फ्रॉड्स नहीं होंगे. I want the cameras to be switched on. Else you need to ping me the reason of not having the cameras on. मुझे कुछ लोगों ने पिंग किया हुआ है, वो ही exempted है. मेरे पर्सनल चैट पे पिंग आनी चाहिए, वरना तेरा कैमरा ऑन रहेगा. You have a problem, you need to ping me. Varna, I want everybody in front of me. No nonsense. Cool. Go ahead, guys. The directors should be aware of the potential for fraud, and this should feature as an element of their risk assessment and corporate governance procedures. Correct. Always the duty is first on the directors to ensure there are no frauds. Everything is managed in the best possible manner. उसके बाद बड़े बाप के औलाद में कौन आता है? ऑडिट कमेटी. उसके बारे में नेक्स्ट लिखा है, देखो दोस्तों. The audit committee should review these procedures to ensure that they are in place and working effectively. This will normally be achieved in conjunction with the internal auditor. करेक्ट. नाउ एक दूसरा बंदा आता है जो फ्रॉड्स को रोकने को मदद करता है, वो इंटरनल ऑडिटर है. भले वो एम्प्लॉई है, बट ऑलवेज थिंक दैट ही इज अ अनबायस्ड पर्सन ऑफ द एम्प्लॉयर. मतलब वो क्या करेगा? वो ऑलवेज ये देखेगा कि कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ सही जा रहा है. So internal auditors also do play a very important role in ensuring that there are no frauds which are detected. क्यों? ये लोग पहले जाके चेकिंग करेंगे. कोई भी बंदा आपका चेकिंग करने आया, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, यू नीड टू बी विजिलेंट एज अ फ्रॉडस्टर. व्हाई? अगर फ्रॉड एक्सपोज हो गया तो इंटरनल ऑडिटर ने भी कंप्लेंट मारा तो तेरे को लात मार के निकाल देंगे जॉब से. दैट इज द रीजन यू नीड टू बी ऑलवेज विजिलेंट. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर. कूल. आगे. Internal auditors can help management fulfill their responsibilities in respect of fraud and error. Typical functions the internal auditor can perform include testing the effectiveness of the internal controls at preventing and detecting fraud and error, and provide recommendations for improvements to the controls. Performing fraud investigations to identify how the fraud was committed, identify the extent of the fraud, provide recommendations on how to prevent the fraud from happening again. Performing surprise asset counts to identify misappropriation. The presence of an internal audit department may act as a deterrent to डेटरेंट fraud. मतलब रोक लगाना. डेटरेंट मतलब ऐसा कोई है जिसकी वजह से फ्रॉड्स ना होने को मदद हो रही है. द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट may act as a deterrent to fraud in itself, as there is a greater chance of being discovered. You know, in your company there is a internal auditor. बरोबर? आपको पता है इंटरनल ऑडिटर है, तो तू फ्रॉड करने की कोशिश ही नहीं करेगा. एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, उसके हाथ में बंदूक भी है, तो कोई डाका डालने के एंगल से आया भी रहेगा तो वो डाका ही नहीं डालेगा. समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? अरे मुंडी हिलाओ ना. डैश डैश. ओके, ग्रेट. गो टू द नेक्स्ट पार्ट. Internal auditors' responsibilities in respect of frauds. The auditor's role is twofold: assess the risk of material misstatement due to fraud and respond to the assessed risk. Okay. Now assessing the risk of fraud. हमारा रोल क्या है? Assess the risk of material misstatement. Underline करना. गलती हो गई है तो उसकी रिस्क कितनी है? हिंदी में जो लिख के रखना. Assess the risk of material misstatement. मतलब there is a material misstatement that has happened. Material misstatement मतलब बड़ी वाली गलती. अभी उससे रिस्क कितनी हो सकती है? गलती तो हुई है, but how risky is that particular mistake is what my role is. And second is respond to the assessed risk. रिस्क को रिस्पॉन्ड करना भी चाहिए. देयर इज अ स्नेक, विल यू किस हिम और किल हिम? ये मैंने पहले बोला था ना एक बार, नहीं बोला ना कभी ये इस बैच में? खुशी कोहली, देयर इज अ स्नेक. बोला है सर. बोला है मोहन. तू क्या करेगा? किस करेगा, किल करेगा?
सर किल करेगा सर। पक्का कॉमन सेंस है, कोई भी उसको किल करेगा। अगर दूर रहेगा तो किल भी नहीं करेगा, भाग जाऊंगा, वो स्नेक को रहने दे उसके हाल पे, उसको कौन पकड़ने जाएगा। लेकिन तेरे पैर के ऊपर चढ़ गया वो, तो यू विल ट्राई टू किक हिम फर्स्ट, नॉट किस हिम। नो दैट इज नथिंग बट रिस्पॉन्डिंग टू अ रिस्क। इतना तो पता है स्नेक है तो रिस्क है। तो बोलेगा सर चलता है यार, क्या फर्क पड़ता है, स्नेक जहरीला है नहीं जहरीला है, तब तक वो तेरी चुम्मी ले लेगा ना। और अगर उसकी चुम्मी जहरीली हो गई तो खत्म हो गया तू उधर। क्या बरोबर ना राघव? स्नेक आया ऐसे सही करके। बात है सर। क्या मोहन तू उस दिन नहीं था? तेरे को मिलना है मुझे एक बार, बोला था मैंने बैच में, मोहन किधर है? सर अभी थोड़ा ये पैर का फ्रैक्चर है, अच्छा वरना आपका लेक्चर तो सपने में भी ये मिस नहीं करूँ सर। वाह यार वाह। अच्छा यू आर हैविंग अ फ्रैक्चर राइट नाउ? यस सर। क्या हुआ आपको दोस्त? वो पैर का थोड़ा एंकल ये हो गया, ट्विस्ट हो गया सर। एक्सीडेंट? नहीं नहीं सर। अच्छा ओके। सो व्हेन इज द प्लास्टर गोइंग टू गेट रिमूव? सर 5 to 6 weeks बोला है, अभी देखते हैं। अभी कितना वीक हो गया? सर 1 week हुआ है सर। ओ तो तू मुझे नहीं मिलेगा, इसका ऑडिट तो खत्म हो जाएगा तब तक। 5 to 6 weeks, और उसके बाद भी इमीडिएटली यू आर नॉट अलाउड टू वॉक, यू कैन ओनली वॉक इन द घर एंड ऑल, सॉफ्टी सॉफ्टी। उठो वॉशरूम जाओ, इससे ज्यादा नहीं अलाउ करते वॉक करने को। तेरे को घर से बाहर निकलने को पूरे 2 महीने जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। मेरे मम्मी का पैर एक बार फ्रैक्चर हुआ था, इट टुक टाइम फॉर हर टू रिकवर। दैट टाइम शी वाज यंग, आई वाज अ किड, बट देन आल्सो आई सॉ हर 2 months completely in the home। फ्रैक्चर निकालने के बाद आई होप यू रिकवर फास्ट। तो अपना मुलाकात कब होएगा? कभी मिलने आना मुझे क्लास में। ऑडिट तो लेक्चर्स 10 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे, आई डाउट तब तक आपका फ्रैक्चर निकलेगा। कूल, चलो। सो आई विश यू स्पीडी रिकवरी मोहन, लेट अस गो अहेड। सो ये मैं रिस्क की बात कर रहा हूं कि देयर इज अ स्नेक, सो डू यू नो देयर इज अ रिस्क हियर। रिस्क दिख रही है, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, रिस्क है। कितना भी प्रोटेक्शन लो, बाय डिफॉल्ट यू आर एक्सपोज टू अ रिस्क। नाउ मैं टीच कर रहा हूं, व्हाट इज अ रिस्क आई हैव। मेरे जान को कोई रिस्क नहीं है। आई हैव नो रिस्क टू माई लाइफ when I'm in the teaching industry. The risk I have is if I teach something wrong, then there is a complaint, of course, सर ने गलत पढ़ाया, ये रिस्क है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझा ही नहीं, सर आते खुद ही बात करते, खुद ही बड़बड़ करते, खुद ही चले, खुद को ही समझता है, ऐसा फीडबैक आ गया, देयर इज अ रिस्क। और तो मुझे रिस्क नहीं दिख रहे। हाँ अभी मेरे ऊपर एक पंखा चल रहा है, ये कभी भी गिर जाएगा, ये तो तेरे इधर भी रिस्क है। मेरे को वो राघव गोयल के ऊपर का पंखा भी दिख रहा है, वो भी कभी भी गिर सकता है। तो ये रिस्क तो सब कैरी करते हैं। ये हाँ क्षितिज त्रिमुख देख, अपने पंखे को देख रहा है, गिर रहा है नहीं गिर रहा है। हाँ वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड। एवरीबॉडी हैज अ फैन एग्जैक्टली अबव वेयर दे सेड जनरली। खुशी कोहली में देख लिया, बराबर चल रहा है ना, सर तो सही बोल रहे हैं, पंखा तो कभी भी गिर सकता है। बट दिस रिस्क वी कैरी गाइस, दिस रिस्क यू कैरी, दीज आर ऑल रिस्क विच वी कैरी इन आवर लाइफ। हाँ बट ऐसा रिस्क बहुत रेयर है कि वर्स्ट बैड लक से बैड लक वाला रिस्क है। मैं बचपन में, अभी भी मेरे को डर लगता है, मैं कभी नारियल के झाड़ों के नीचे से जाता हूँ ना, कोकोनट ट्रीज के, मैं से ऊपर देख के ऐसा सिर ढक के जाता हूँ। आई ऑलवेज हैव अ फियर, एक साला नारियल सिर पे गिर गया ना, उधर तेरा खत्म तू, विद द फोर्स इफ अ कोकोनट हिट्स यू, खत्म। मैं नारियल के झाड़ों के नीचे जाता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ सिर पे लेके चलता हूँ ऑलवेज। मेरी वाइफ हंसती रहती है, मतलब नहीं नहीं तू हंस, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। इसका एक कारण है। आई वॉज मे बी इन 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, 4th और 5th के बच्चे को अक्ल आई रहती है, और मैं चल रहा था, एंड मे बी इफ आई वुड हैव टेकन 2 steps द नारियल वुड हैव फॉलन एग्जैक्टली ऑन माय हेड, और पता नहीं मेरा क्या होता, थर्ड करके नारियल गिरा था। और मैं लिटरली इफ आई वुड हैव वॉक 2 steps, तो मैं बहुत डर गया था। और वो डर मेरे आज, अभी तो इतना ठीक है, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, बट उस टाइम से नारियल का झाड़ दिखा, वेरी केयरफुल कि यार ये मैं और मेरे डैड चल रहे थे, और ये धाड़ करके 1 और 2 कदम और तो हमारे सिर पे गिरता, वो मेरे या मेरे डैडी के। सो आई वॉज कंप्लीटली अवेयर कि यार ये तो बहुत जोरदार गिर गया है यार, सिर पे गिरता तो क्या पता क्या होता। दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क इफ यू वॉक बिलो अ नारियल ट्री, बट इफ यू वॉक बिलो एन एप्पल ट्री, इतना बड़े एप्पल के ट्रीज होते होते, तो एप्पल गिरेगा तो तू मरेगा नहीं, नारियल गिरे सर पे वो स्पीड से तो तू खत्म हो जाएगा उधर। मतलब एवरी टाइम देयर इज अ रिस्क, एंड असेसिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेस कौन सी ट्रेन तेरे आंख पे कितने स्पीड से आ रही है, तू रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, ये रिस्क है, तेरे को कैरी करती है तू, तो ट्रैक पे मत चलो।
whatever, name a thing, it has a risk. ये कप है मेरे बाजू में, मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फूट जाएगा, इधर से भी गिर जाएगा तो भी टूट जाएगा। ये ग्लास का है और सिरेमिक है, मतलब रिस्क इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। खुशी The auditor should obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. अंडरलाइन करना रीजनेबल एश्योरेंस को। रीजनेबल एश्योरेंस के बाजू में आप आपके हैंडराइटिंग से लिखोगे, लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। कूल, आगे। Apply professional skepticism and remain alert to the possibility that fraud could take Okay. place. So प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत बार शब्द आया है। एटीट्यूड ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल एनालिसिस, डोंट एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज। कूल, आगे। This means that the auditor must recognize the possibility that a material misstatement due to fraud could occur regardless of the auditor's prior experience of the client's integrity and honesty. Correct. This means that the auditor should recognize that the possibility that a material misstatement due to fraud or error occurs. ये हो सकता है regardless of auditor's prior experience। मतलब कितना भी बेहतरीन खिलाड़ी, आज विराट ने सेंचुरी मारी, अगर तेरे को पता रहेगा तो। मैंने तो क्रिकेट मैच देखा नहीं है, इंडिया श्रीलंका के मैचेस कौन देखेगा, फालतू मैचेस चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ 370 रन बनाए इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करके। अभी डे नाइट मैच चल रहा है किधर, तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस स्टूपिड क्रिकेट मैचेस। इसमें मतलब क्रिकेट में प्रेमी हूँ, लेकिन ये मैच नहीं देखनी है मुझे, फालतू चल रही है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल सीरीज, नो इंटरेस्ट, कुछ मजा नहीं आता वो। सो लेकिन विराट ने सेंचुरी की, बट आज सेंचुरी की, दैट मीन्स कैन यू गिव मी इन राइटिंग दैट नेक्स्ट मैच ही विल नॉट बी आउट ऑन द जीरो? गिव मी इन राइटिंग। हम लिख के दे विराट जीरो पे आउट नहीं होएगा, गिव मी इन राइटिंग। तू छोड़, विराट कोहली खुद लिख के नहीं देगा वो बैट्समैन होने के बावजूद कि नहीं ये तो कभी भी हो सकता। बट देन कैन यू टेक अवे द क्रेडिट्स फ्रॉम विराट कोहली? द बिग आंसर इज नो। इज ही अ गुड प्लेयर? यस। यही उधर लिखा हुआ है कि कितना भी एक्सपीरियंस ऑडिटर होने के बावजूद भी फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके लेवल पे, कोई उसको कंप्लीटली रोक नहीं सकता। कितना भी एक्सपीरियंस ऑडिटर होवे, there can be a risk that there can be a fraud in the financial statements, that cannot be denied. Next, consider the potential for management override of controls and recognize that audit procedures that are effective for detecting error may not be effective for detecting fraud. हाँ, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो ऑडिट प्रोसीजर्स फाइंड कर रहे हो, whatever audit procedures you are doing for finding out an error, those procedures may not work for finding out frauds. ये आपको पता होना चाहिए। जो चीज चेक करके मैं गलती ढूंढ सकता हूं, उसी चीज से मैं फ्रॉड्स ढूंढूं, ये जरूरी नहीं है। While doing audit of financial statements, you need to be completely careful that okay, the auditor is using say procedure X for finding an error, that procedure X may not be fruitful for finding a fraud. For that he needs to do some procedure Z, procedure T, procedure Q, procedure P, but at X is fruitful for errors, may not be fruitful for finding out frauds. I hope I'm very clear with this. इसके नीचे के 4 बुलेट्स आपके होमवर्क है, वो मैं आज क्लास वर्क ही करवाने वाला हूं, उधर लिख के रखो होमवर्क। उसके नीचे रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क, मुझे पता है फ्रॉड्स हो रहे हैं, हाउ विल आई रिस्पॉन्ड, ये मैं रीड कर रहा हूं। पहला, रिव्यू जर्नल एंट्रीज मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स, अंडरलाइन। How I will respond to an assessed risk? The risk is there is a fraud. Yeah, there might be a fraud. Easily might. So review the journal entries that are helping you to find out manipulated figures. Now journal entry is the mother of all entries. Why? वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद सब्सिडरीज बनते हैं, उसको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनता है,
और उससे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। बीच में एरर्स वेरर रहेंगे तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था 11th में। दिस इज द फ्लो, बट मदर इज जर्नल। सो फाइंड आउट, रिव्यू द जर्नल। ओके, बीच का आप खुद पढ़ोगे, मैं सब 100% पुस्तक नहीं पढ़ पाऊंगा क्लास में, फिर भी मैं 60-70% पढ़ता हूँ क्लास में, मतलब वी एंश्योर वी रीड द मैक्सिमम। नीचे का 3 हाइफन्स आपका होमवर्क है। सो पहला था रिव्यू जर्नल एंट्रीज, दूसरा है रिव्यू मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, लिख लो उधर, अंडरलाइन करना। नाउ व्हाट इज एस्टिमेट गाइस, उधर लिखो अंदाजा। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा, रिव्यू एस्टिमेट इज अंदाजा। Are you understanding? So what is estimates? Everywhere you can everywhere you might require estimates. Estimates for bad and doubtful debts, estimates for making a depreciation, estimates for paying taxes, lot of, ये लिखिए आप एग्जांपल्स फटाफट उसके बाजू में। देखिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, estimates for taxes, estimates for depreciation, estimates for creation of a contingent liability, बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज 165 पे, रिव्यू ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, डैम इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दिखी क्या जो आमतौर पे दिखती नहीं है, तो उसको चेक कर लो। आई डोंट नो वेदर आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, अभी तो फिलहाल याद नहीं। मैं एक बार रात को 1:30-2 का टाइम हुआ रहेगा, शनिवार नाइट था, तो आई वॉज कंप्लीटली रिलैक्स, संडे को मैं लेक्चर लेता नहीं हूँ। अदर देन दीज ऑडिट लेक्चर्स, आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई डोंट टेक एनी लेक्चर्स ऑन संडेज। बिल्कुल लेक्चर्स लेता नहीं मैं साल भर, वो मेरा पर्सनल टाइम होता है, मेरे फैमिली के साथ मैं रहता हूँ। आई जस्ट डोंट टेक एनी लेक्चर्स ऑन संडेज। सो सैटरडे था, आराम था, मैं कुछ पिक्चर विक्चर देख रहा था, मेरी बीवी सो गई, फिर हम अमेजोन पे कुछ देख रहे थे, मेरे को नींद आ रही, मैंने बोला मेरे को देखना है, तू जा सो जा। फिर उसके बाद मुझे याद था कि हमको किधर जाना है आफ्टर 2 odd months, एंड आई वांटेड टू बुक अ फ्लाइट टिकट। तो मैंने कहा मेरे को नींद तो आ नहीं रही है, टीवी भी चल रहा था कुछ मस्त, मैंने वो फ्लाइट बुकिंग करना चालू कर दिया। रात के 1:45 के आसपास का टाइम हुआ रहेगा, और वो फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो उसका पर पर्सन कुछ रिटर्न टिकट 40,000 था। 2 टिकट्स मेरे और मेरे वाइफ का मुझे बुक करना था। तो फ्लाइट वेट बुक होने के बाद पूरा 80,000 प्लस वाटर 81,000 का मैंने वो कार्ड स्वाइप मार दिया, उधर कार्ड डिटेल्स डाले मेरे क्रेडिट कार्ड के, एंड आई क्लिक्ड, वो आ गया बुक, फ्लाइट बुक, इधर से उधर जाएगा, रिटर्न टिकट था, सब आ गया। जैसे वो फ्लाइट बुक हो गई, मे बी लेस देन 30 सेकेंड्स मेरा फोन बजने लगा, फुल प्रॉपर। रात को 1:45 को कोई फोन नहीं करता आपको। उधर दिखा HDFC, वो आता है ना ट्रू कॉलर पे, HDFC क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, ऐसे आ गया। मैंने उठाया, फर्स्ट थिंग वाज, सर वी आर वेरी सॉरी, वी आर कॉलिंग यू एट सच अ लेट नाइट, बट द ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी 10 seconds, मैं एग्जाम्पल कैरी करूँ, जस्ट गिव मी 10 seconds।
या आई एम बैक। सो वो फोन बजने लगा और उन्होंने सबसे पहले बोला, सर वी आर वेरी सॉरी, वी आर कॉलिंग यू एट 1:45 इंडिया टाइम, इट्स वेरी अर्जेंट, right now your credit card is swiped for 81,000 on this airways, but looking at the time and generally what you हर दिन इसके पहले मैंने कभी इंटरनेशनल उस कार्ड से स्वाइप नहीं किया था। मेरा खर्चा क्या जोमेटो पे होता है, उनको दे कीप ट्रैकिंग योर ट्रांजैक्शंस गाइस। जयेश का क्रेडिट कार्ड पेट्रोल भरने के लिए यूज होता है, जोमेटो के ट्रांजैक्शन के यूज होता है, कुछ लाइफस्टाइल में खर्चे वर्चे होने के लिए यूज होता है, या फिर और डीमार्ट में स्वाइप मारता हूं। सो दे आर अवेयर यहाँ ये कार्ड जनरली कहाँ वापरते हैं। रात को 1:45 81,000 का एक बड़ा ट्रांजैक्शन किसी ऐसे एयरवेज पे, एयरवेज थी सेशल्स एयरवेज, मुझे ये याद है, सेशल्स एयरवेज, इफ यू आर अवेयर फाइंड आउट वेयर सेशल्स इज, एंड वो एयरवेज में मैंने फ्लाई मार दिया। बहुत ऑड है ये सेशल्स एयरवेज वगैरह, इट्स अ स्मॉल आइलैंड इन द इंडियन ओशन, और वो बड़ा खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। तो वो बोल रहे थे वी जस्ट वांट टू चेक वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज डन बाय यू, एल्स भले टिकट बुक हुआ है वो एयरवे से, अभी तक पैसे हमारे इधर से आगे नहीं बढ़े। तो समझा उन्होंने क्यों फोन मारा इमीडिएटली आपको। वो बोल रहे अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया तो हम ये ट्रांजैक्शन रोक देंगे इधर, और वो टिकट जो आपका बुक हुआ है वो रिवर्स हो जाता है क्योंकि एयरलाइंस को पैसा नहीं मिला। दे वेट फॉर अ मिनट और टू। तो अभी आधा मिनट हुआ है, अभी इमीडिएटली आपने फोन मारा है, अभी तक हमारे इधर से आपके पैसे गए नहीं है। हमको कोई डाउट नहीं रहता तो पैसा आगे बढ़ता है, हमको डाउट आया तो आप ना बोलोगे अगर फर्जी ट्रांजैक्शन हुई है, फ्रॉड हुआ है आपके कार्ड में, तो ये ट्रांजैक्शन इधर ही रिवर्स होके आप बच जाओगे। इतना उसने फटाफट इंग्लिश में मुझे 35 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में एक्सप्लेन किया। सर वी आर वेरी सॉरी दैट वी आर कॉलिंग यू एट सच अ लेट नाइट, योर कार्ड इज स्वाइप ऑन सेशल सर्वे फॉर 81,000, it is 1:45 a.m. where rarely your card is ever swiped, amount is big, we just want to understand is this a genuine transaction, else immediately we can stop this transaction and it has occurred just a minute back, we want your मतलब ये होने के बाद मैंने बोला नो 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 यू गो अहेड, द जेन्युइन ट्रांजैक्शन आई हैव स्वाइप्ड द कार्ड। मतलब वो तो बोले ओके सर सो सॉरी कॉलिंग यू वन मोर टाइम, और वो रोक दिया। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ गिविंग यू दिस एग्जांपल। पेज 165 के ऊपर की लाइन क्या है, रिव्यू द ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्रेडिट कार्ड कंपनी एचडीएफसी बैंक को पता है जयेश का कार्ड कहाँ स्वाइप होता है। ये अजीब ट्रांजैक्शन दिखी और टाइम भी बड़ा अजीब था, शायद ये 1:45 PM रहता ना, पता नहीं फोन आता कि नहीं, बट 1:45 इन द मॉर्निंग AM टाइम बड़ा अजीब था कार्ड स्वाइप मारने के लिए। तो उन्होंने इमीडिएटली मतलब दे वेर सो प्रोएक्टिव कि कुछ गड़बड़ होने के पहले बोले नहीं बोले तो अभी रिवर्स मारते, पैसा गया नहीं है, यू विल बी सेव्ड, नो प्लीज गो अहेड आई हैव डन द ट्रांजैक्शन। उसके बाद फोर्थ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उधर लिखो SA 580, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ISA 580। मोहन तू घर पे है ना, डैश डैश पूरा टाइम पढ़ाई करना है तेरे को, अभी तू जा भी नहीं रहा है किधर, फुल टाइम घर पे हो आप, तेरे से ही बाइट करवाऊंगा मैं सबसे पहले। ओके वेरी गुड। सो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ISA 540, एम आई वेरी क्लियर माय डियर सॉफ्टीज, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न मतलब लिखित में दो। अगर मैंने तेरे को बोल दिया फॉर एग्जांपल, कितने लोग मेरे पे विश्वास करेंगे, 4:30 to 6:30 पार्ला लेक्चर है, निधि रमी पार्ला आती है, वो राशि आती है, फिर ये रॉड्रिक्स आई है, ये रॉड्रिक्स ना, उस दिन कौन था, कितने लोग पार्ला वाले, निधि रमी दिख रही है मेरे को, पार्ला वाले कितने लोग हैं, हाँ रिद्धि रिद्धि सोहम पंडित भी दिखता है, बरोबर है, ये निधि सोहम ये सब लोग, रिद्धि। मैंने बोल दिया अगर तुम 4:30 बजे लेक्चर है, मेरे आने के पहले क्लास में आ जाओगे, आई विल पे यू 1 लाख रुपीज ईच। एंड सेम मैंने माटुंगा वालों को बोल दिया, जो जो मेरे लेक्चर के पहले आएगा मैं सबको 1-1 लाख रुपया दूंगा। ये चीज एक्सेप्ट करने वाली है या फेकुचन लग रही है? विल यू एक्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक राइट नाउ? फिर कोई 1.5 बोलेगा लिख के दे दे, मैंने नॉर्मल पेपर पे भी लिख के दे दिया, ले इफ यू कम बिफोर आई कम इन द क्लास आई विल पे यू 1 लाख।
फिर मैंने दिए नहीं, बंदा कोर्ट में गया, मैंने बोला सर इसने गन पॉइंट पे रखा था मुझे, इसलिए मैंने लिखवा के दिया था, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन मैंने बोला आई पे यू 1 लाख, तो बोले इस पे एफिडेविट करवा के लिख के दे। अब मैं नहीं करूंगा। एफिडेविट इज अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। व्हाई? what you write there has to be true, because if you write there something which is not true, you can be put behind the bars. इसलिए जब कोई बोलता है ना एफिडेविट कर, उसमें सब सच्चाई होनी चाहिए। कल मुझे बोला जयेश गिव एन एफिडेविट दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड एन एमकॉम, मैं बिंदास एफिडेविट कर दूंगा। जा, जिधर उखाड़ना है उखाड़, जो उखाड़ना है उखाड़, जा जिधर चेकिंग करनी जाके करके आ, जो इंस्टीट्यूट में जाना है जा, बिकॉज आई नो आई एम सेइंग द ट्रूथ। बट उधर एफिडेविट लिख दिया आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग द ट्रूथ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तेरे को सर्दी खांसी हो तो मैं एक दवा बोल दूंगा ये दवा ले ले क्योंकि ये खा के मैं ठीक होता हूं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर नहीं हूं। कौन सी दवा? चेस्टन कोल्ड नामक एक गोली रहती है, मुझे खांसी होती है, मैं वो लेके मैं ठीक हो जाता हूँ, चेस्टन कोल्ड। तेरे को वही तू भी खा लेना है कैसे, इतना कैजुअली मैं बोल सकता, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई विल नॉट गिव इन राइटिंग ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट। सो एफिडेविट इज अ पावरफुल डॉक्यूमेंट। मैंने अगर लिख दिया एफिडेविट पे whosoever comes in the class before I reach, I am going to pay you 1 लाख, फिर या तो 1 लाख दे या तो कोर्ट केस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई लिखित में पावर होती है, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स इन राइटिंग। I hope how you are going to respond on assess 3. Let us revise those 4 bullets. Review journal entries पहला, review management estimates दूसरा, review transactions तीसरा, and obtain written representation is the 4th. Sounds cool? ये समझा सबको? ऑल माय डियर सॉफ्ट टॉयज को ये समझा क्या रे? पक्का वाला, कोई गड़बड़ नहीं? ऑल कूल? ग्रेट. Reporting of fraud and error. I'm gonna make you write certain things. How will you report the fraud and error? उसके लेफ्ट में जो जगह है ना, मस्त लिखना चालू कर पेन से। Communications to the management and TCWG लिखिए उधर। How will you report fraud? Communications to the management and TCWG. Second, पहला क्या बोला? Communicate to the management and TCWG. Take appropriate legal actions. Take appropriate legal actions. Next, to check if any confidential data needs to be reported. To check if any confidential data needs to be reported. To check if any confidential data needs to be reported. And last, if frauds have a material impact, if frauds have a material impact, if frauds have a material impact, need to modify the report. If frauds have a material impact, need to modify the report. खुशी जो मैंने लिखवा के एक बार रीड करो। Communications to the management and TCWG. Take appropriate legal actions.
to check if any confidential data needs to be reported. If frauds have a material impact, need to modify the report. Okay. If frauds have a material impact, needs to modify the report. Easy है ये. एक बार दोस्तों ये स्टैंडर्ड या खत्म हो गया 4 पेजेस का. बहुत अच्छे से मैंने करवाया हुआ है. फ्रॉड रिपोर्टिंग में क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले 162 पे आइए. Fraud is an intentional act by one or more individuals among management and those charged with governance, employees or third parties, involving the use of deception. यहां से लेके जो 4 पेजेस थे, आपको 3 मिनट दिया. I want you to go through this. अच्छे से देख लेना. 3-4 मिनट दिए आपको. चारों पेजेस.
कोई दिक्कत नहीं है गाइस? ओके, कम ऑन 169 विल गॉन। इसके बाद का स्टैंडर्ड और 2 पेज का है जो हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं, बाद में जाएंगे उसके ऊपर, शायद आज नहीं पहुंचेंगे। विल गो एंड अंडरस्टैंड क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग क्वालिटी is what we need to understand that SA 220 quality control for audit of financial statement, या उसको क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अंडरलाइन करना फर्स्ट लाइन 169 की, ISA 220 quality management for an audit of financial statement. Now audit quality needs to be maintained. Now ये पूरा स्टैंडर्ड है ना, ऊपर के बॉक्स में समराइज किया, जिसको एलैबोरेट करना है तो इसमें से भी मैं काफी सारा चीज होमवर्क देता हूँ, बिकॉज ये बबलू स्टैंडर्ड है 4 पेजेस का। एथिकल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 4 में। बहुत सारे एथिक्स के बारे में हमने पढ़ा। यू रिमेंबर दैट एथिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था? ये थ्रेट, वो थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऑल वेर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। चैप्टर चालू होता है एंगेजमेंट रिसोर्सेस। फॉर बीइंग एथिकल एंड फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट क्वालिटी I need to have the best resource in place. तो मुझे ऑडिट के लिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। MA पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यही अगर तेरे ACCA के कोर्स में मैथ्स रहेगा ना, मैं वो कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है यार, नॉनसेंस। कैसा जैसा मैथ्स में पास हुआ हूं मैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत पकाऊ सब्जेक्ट, मुझे नहीं अच्छा लगता था। 12वीं का मैथ्स, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, मेरा तो मदर सिस्टर हो जाता था, मुझे कुछ नहीं आता था। आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगता था और मुझे आता भी नहीं था। और मुझे लगता था इसका यूज क्या है, इतना सब मगजमारी हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस शिटी थिंग्स? आई नेवर लाइक्ड इट, और मैं कभी पढ़ाऊंगा भी नहीं। मतलब अगर जयेश को कभी मैथ्स पढ़ाने को रखा ना, 2 चीजें होंगे। जयेश खुद डिसइंटरेस्टेड है, सो आई विल डेफिनेटली नॉट एट माई बेस्ट। नंबर 2, नुकसान बच्चों का भी होने वाला है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? For having the utmost quality, you need to have the best resource in place. Beyond that chart, मैं ये पूरा सेंटेंस चार्ट में ही समझा डालता हूँ, वो मुझे बड़ा इजी लगता है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एथिक्स होने जरूरी है, जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़े। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बेस्ट इंसान होना चाहिए, एब्सोल्युटली ट्रू। आज ही मैं यही चीज किसी को पढ़ा के आया हूँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो। वहां मैंने ना मेरे दांत का एक एग्जाम्पल, अभी मेरे दोनों, एक लेफ्ट वाले और एक राइट वाले दांतों में ना लिटरली छेद पड़ गए हैं। There's a big hole in my लेफ्ट राइट के जो कोपरे वाले जो दांत है उसमें। आफ्टर माई लंच एंड डिनर आई रिक्वायर अ टूथपिक एवरी नाउ एंड देन टू क्लीन माई टीथ, वरना कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल अटक जाता है, इतना बड़ा वो कैविटी हो गया है। ये कैविटी मैंने किसी डेंटिस्ट से भरवा के भी ली थी। वो डेंटिस्ट थी मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी, जो नई नई डेंटिस्ट बनी थी 1.5-2 साल पहले। और मतलब डेंटिस्ट तो बोली थी, खुद की प्रैक्टिस नहीं चालू की थी, किसी के अंडर काम वाम करके। सो शी इज स्टिल वेरी न्यू टू दैट डेंटल फील्ड। अपने ही दोस्त की बीवी है, उसने नया क्लिनिक खोला है, ये सब करके मैं उधर गया। आई टेल यू, मेरे मेरे दांतों की ना झंड करके रखी उसने, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। मेरे दांतों की लिटरली झंड करके रखी है उस औरत ने। और ये भी मैं मेरे दोस्त को नहीं बोल सकता, मेरे बीवी को बोला है, मम्मी डैडी को पता है कि यार इसके दांतों का बड़ा हालत खराब कर दिया है उस डेंटिस्ट ने, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी है। तो यू ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट दोज हु आर इन योर फैमिली। तो फैमिली तो नहीं है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बोला, अपने बेस्ट फ्रेंड वगैरह। तो लिटरली उसने ना, लिटरली मेरे दांतों की ना इतनी मदर सिस्टर कर दी दोनों की। तो उसके बाद ना वो मेरे को, तेरे दांत ठीक है ना? मैं हाँ हाँ बोलता रहता हूँ, भाई तेरे पास नहीं आऊंगा कुछ भी बोल के। सो नाउ आई विल गो टू द बेस्ट डॉक्टर। मैं गया भी था बीच में, एकदम एक्सपीरियंस डॉक्टर है, थाने का वन ऑफ द फाइनेस्ट डेंटिस्ट है। तो वो बोल रहा है मैं बिजी हूँ फिलहाल, अगर तेरे को इमरजेंसी तो मेरी असिस्टेंट तेरा काम कर देगी। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को असिस्टेंट लोगों से काम नहीं करवाना है। वो बोल रही है अभी अभी फ्रेशर है, वो मस्त काम कर दे, वो तेरा दांत का काम। नहीं 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 नहीं, मेरे को ये फ्रेशर वेशर लोग नहीं चाहिए।
पकड़ ले वो रिद्धि माल्टे, वो इमेजिन शी इज द न्यू फ्रेशर डेंटिस्ट और वो बेस्ट डॉक्टर की वो असिस्टेंट है, वो मुझे लुक देने लगी ऐसे, एकदम घूर रही है, क्या रे तू ऐसा चिचोर ऐसा बात कर रहा है। मैं बोला तू भाड़ में जा, बोला मैडम जी आप बेस्ट डॉक्टर रहेंगे, मेरे को यही डॉक्टर से लेना है, वो जो सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसी से मैं दांत भरवाऊंगा अभी मेरे, जो भी ढुर ढुर करना है। वेरी इरिटेटिंग दैट नॉइज, रूट कैनल होने के बाद 2 दिन आप बात नहीं कर पाते, इतना दुखता है। ये सब मैं तेरा ऑडिट का लेक्चर्स खत्म होने के बाद और 1 महीना में ऐसे ही चलवाऊंगा अभी। आफ्टर दैट आई एम गोना टेक अ ब्रेक ऑफ 5-7 days एंड गोना इंश्योर दैट माय टीथ आर वेरी नाइस। नहीं तो मेरी मदर सिस्टर होने वाली, लिटरली मेरे दांतों में काफी छेद पड़ गया। व्हाट इज द मॉरल? आई वाज नॉट फाइन विद दैट यंगस्टर, मतलब उसकी क्वालिटी ना एकदम पथेटिक हो गई है। शी नीड्स टू गेन बेटर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट वर्क। एक्सपीरियंस उसको प्रैक्टिस से आएगा, बट अभी मैं मेरे दांतों में उसको एक्सपेरिमेंट करने नहीं दूंगा। एक बार दिया तो उसने एकदम लिटरली मदर सिस्टर हो गई मेरे दांतों की, दोनों ऐसे ही गंदा एकदम, वो क्या फील किया था सब बाहर आ गया एंड ऑल, प्रॉब्लम में फंस गया था मैं। अभी भी है वो प्रॉब्लम, उससे मेरे को कोई ऐसा खासा तकलीफ नहीं होता है। ओनली थिंग इज यू नीड टू क्लीन योर टूथ ऑलवेज विद द टूथपिक वंस यू ईट। कुछ ना कुछ अटक जाता है कैविटीज में, वो दांतों में खड्डा पड़ गया तेरे तो दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो एट। नाउ आई विल नॉट गो विद दैट यंगस्टर, आई, मैंने साफ बोला ये यंगस्टर नहीं चाहिए आपको, वो बताइए। तो बोले 15 दिन बाद, मैंने बोला डन, वैसे भी मुझे अभी फिलहाल टाइम नहीं है, मैं अभी गया था 4-5 दिन पहले। मतलब February 1st week, बोला हाँ चलेगा। मतलब जब तक मेरा ऑडिट बैच भी खत्म हो जाएगा, आई विल टेक अ 3-4 days लीव एंड गो एंड एंश्योर आई गेट दैट दोस थिंग्स रेक्टिफाइड नाउ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्वालिटी के लिए ह्यूमन बीइंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी आर कंफर्टेबली सिटिंग इन आवर होम्स। तो वो आभा भा से बहुत दिन से आई नहीं, एकदम मेरे को याद आ गया यार, वेयर इज दैट आभा? आभा भा से बहुत दिन से दिखी नहीं मेरे को। आभा, इफ यू आर चेकिंग दिस लेक्चर, सुश्रुता भी आती नहीं, लेकिन उसने बोल दिया है मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ, सिर्फ लाइव लेक्चर को आती हूँ। आभा ने ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है मुझे। कूल। सो टेक्नोलॉजी हैज टू बी द बेस्ट। वी आर सिटिंग, मैं थाने में बैठा हूँ, निधि रमी मीरा रोड में बैठी है, खुशी कोहली किधर, दादर ना, वेर यू स्टे, माटूंगा, कहाँ रहते हो? चेंबूर। चेंबूर में बैठी है। अच्छा, झामा के टेरिटरी से आते हैं ये लोग, ओके ओके, ये लोग झामा के टेरिटरी से आते हैं। पता है तेरे को क्या बात कर रहा हूं मैं? ऐसा वो चेंबूर का आदमी नहीं रहेगा जिसको झामा नहीं पता, तो ये दो फर्जी डुप्लीकेट चेंबूर कर रहेगा, फिर झामा नहीं पता उसको। कूल। सो वी आर इन आवर होम एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम। व्हाई? जस्ट फॉर अ थियरी लेक्चर ऑनलाइन गोज वेरी वेल। तेरे को तो मैंने एमए भी पढ़ा था, मेरे पास तो स्टाइलस वाइलस भी है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट देन ऑल्सो प्रैक्टिकल लेक्चर्स में 2 लेक्चर ऑनलाइन 2 लेक्चर ऑफलाइन कैन वर्क। इन अ थियरी 100% ऑनलाइन ऑल्सो कैन वर्क। व्हाई वी आर मीटिंग ऑफलाइन? और रेपो होना चाहिए प्रोफेसर और स्टूडेंट का, जो वैसे भी है अपना। So then this is the advantage of having a good technology, and intellectual is nothing but your skill and knowledge of using both. Understand? My good intellectuals will help me to use my resources in the best possible manner with the help of advanced technology. मेरा dialogue समझा? My intellectuals will help me to use the best human resources with the best technology which is available. ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी, क्वालिटी अच्छी जानी ही जानी है। Engagement performance. Quality can be good when there is a proper direction, proper supervision, proper review, and EQR. क्या है ये EQR guys? What is this EQR? I want you to directly come on page number 173. EQR का मतलब होता है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। 170 को स्टार मार्क कर, फिर 169 पे आ और उधर ही EQR का फुल फॉर्म सर्कल करके लिख दे। योर नोट शुड बी सो परफेक्ट कि तेरे को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी तो उधर पेज नंबर लिखा होना, जैसे मैं तेरे को एग्जाम के केस लॉज में करवा के दिया था। ऑलवेज रिमेंबर, डू समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। ये सब इतना बड़बड़ कर दो दोस्तों। यू नो हाउ स्लिम एंड ट्रिम आई एम, कितना दुबला पतला हूं, आपने देखा ही है मुझे। ऐसा लगता है बेचारा कितने दिन से कुछ खाया नहीं है। तो बस जिम जाने की देरी है मेरे को, बहुत कंटाल आता है मुझे, बहुत कंटाल आता है, कितना भी मोटिवेट करो खुद को। बराबर ना त्रिमुख है? सो आई शुड ऑल्सो इंश्योर दैट आई एम, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको फॉलो करना चाहिए। जिम छोड़ के मैं सब में एकदम एक्सपर्ट रहता हूँ, ऑलवेज एथिकल, ऑलवेज जिम में मैं एकदम अनएथिकल रहता हूँ।
देवजोत, यू हैव सीन मी हाउ दुबला पतला। देवजोत आप भी दिखे नहीं मुझे कभी भी यार ऑफलाइन लेक्चर्स को। No, I was absent in the last class. My grandfather expired. ओह ओके। आप माटुंगा वाले हो पारला वाले हो? Patuma. माटुंगा। आप कहाँ रहते हो? Time. अच्छा okay, चलो ठीक है, रीजन तो भाई का बरोबर है, एक्सेप्टेड। कूल। एक बार ना बांटूंगा मैं आपको सबका नामकरण बोलने वाला हूँ, एक बार सब मेरे को वापस नाम बोलना। सेम फॉर पारला ऑल्सो। पारला बैच बहुत छोटी है, 8-10 बच्चे ही आते हैं। माटूंगा बहुत बड़ी बैच है, काफी हद तक बड़ी है। ठीक है। सो EQR एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू मतलब आपने क्या काम किया है उसको रिव्यू करने कोई बंदे को बुलाओ, ताकि वो बंदा आपका काम वी आई एम गोना रीड दैट EQR। बाकी सब पेज नंबर 169, 170, 171, 172 होम वर्क फॉर थर्सडे लिखिए उधर। ये इतना एक्सप्लेन करने का, ये पोपट चीजें मैं क्लास में नहीं रीड करता, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑल। बच्चा भी पकता है और टाइम भी बचता है। ये टाइम पास आप घर पे पढ़ के आओगे, मैंने बहुत जोरदार ऊपर ही चार्ट में एक्सप्लेन किया है। एज आई सेड 30-35% आई आस्क यू टू रीड एवरी चैप्टर में से 8 से 10 पेजेस। So I will appreciate that you come reading it when we meet offline on a Thursday. 169, 170, 171 and 172. Come on 173. Madam ji, start reading engagement quality review. उसके बाजू में पहले लिखो, जरा लिखिए वो engagement quality review के बाजू में, it is done for evaluation of judgments. Audit is full of judgments, guys. And if your judgments are correct, then everything is falling in place. And if your judgments are wrong, everything is a problematic thing. अगर जजमेंट बरोबर है तो सब बरोबर है। कौन सी गाड़ी मेरे पास कौन से स्पीड से आ रही है, इसकी जजमेंट गलत होगी तो क्या होगा आपको पता है। तू ड्राइविंग कर रहा है, सामने वाली गाड़ी तेरे तरफ कौन से स्पीड से कितने दूरी से आ रही है, इसकी तेरी जजमेंट गलत हो गई तो क्या होगा तुझे पता है। दैट मीन्स योर जजमेंट्स नीड्स टू बी वेरी परफेक्ट। अभी परसों की बात है, एक नया ड्राइवर है, मतलब मेरा कोई रिलेटिव है, उसने गाड़ी खरीदी तो वो मेरे नीचे आया एकदम एक्साइटेड, चलो जयेश ड्राइव पे आते। मैंने बोला वाह वाह वाह, चल चल चल। मैं भी फ्रंट सीट पे बैठा उसके, वो बाजू में था, मेरी मम्मी डैडी पीछे बैठे थे, सबको घुमाने आया था। एक्साइटेड, न्यू कार टेकन बाय माय कजिन ब्रदर हु इज एल्डर टू मी बाय 8-9 years. So he is just 26, super excited, a new car. I also said hearty congrats. चलवाने के टाइम, अभी फॉर एग्जाम्पल इट इज अ 3-lane रोड, फर्स्ट लेन, मिडल लेन, थर्ड लेन में मैं हूं और मतलब मैं जा रहा हूं तो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन, फिर बीच वाली लेन और देन द मेन लेन जहां रहती है, जहां लोग मैक्सिमम स्पीड में रहते हैं। हम वो मेन लेन में थे, मैक्सिमम स्पीड वाली लेन में, और देन देयर इज द डिवाइडर, सामने से भी 3 लेन वाला रास्ता है। हाईवे पे लेके गया लंबा ड्राइव के लिए, एंड आई ऑब्जर्व्ड ही वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू द डिवाइडर। इसकी गाड़ी पूरा टाइम डिवाइडर के पास में जा रही है और बंदा 60-70 पे चला रहा है। मैंने अरे तू बहुत राइट में है भाई, तू लेफ्ट पे ले तेरी गाड़ी। बोलते ये डिवाइडर को चलवाना ना, मैंने ये वाला डिवाइडर तब लेना है जब तू, मतलब ये, इनफैक्ट आई गाइडेड हिम। अभी मैं बहुत साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई तेरी गाड़ी बहुत राइट में, इधर उधर हो गया ना हम उड़ जाएंगे उधर, तू बहुत राइट में चला रहा है, यू विल गो, योर टायर्स विल टच द डिवाइडर, और सामने से गाड़ी, तू थोड़ी गाड़ी तेरी लेफ्ट में ले ले। मतलब इफ यू आर ड्राइविंग इन द लास्ट प्लेन, तेरा जो लेफ्ट वाला जो बीच में से व्हाइट पट्टे, वो तेरा बेस होना चाहिए। मतलब अभी पता है तेरे को समझ रहा है कि नहीं, मैंने उसको ड्राइविंग के टाइम समझा, बोला अच्छा ऐसा रहता है क्या। मैंने फिर तू गलत चला रहा है, फिलहाल तू गाड़ी थोड़ी इधर ले ले, अपनी गाड़ी इतनी राइट में चली गई है दैट कैन डैश ऑन द डिवाइडर एंड कुछ हो गया तो उधर जाएंगे, ठोक डालेंगे गाड़ी अपनी। बोला अच्छा मैं तो और बार ऐसे नहीं, गलत चला रहा है तू, तेरे को किसने सिखाया, कुछ बोला नहीं, इट इज रॉन्ग ड्राइविंग। तू इतना भी लेफ्ट में मत जा कि बाजू वाले लेन में चला जाए, अपनी लेन में रहने का, लेकिन यू कैन नॉट बी सो क्लोज टू द डिवाइडर इफ यू आर इन द फास्ट लेन। तेरा गाड़ी थोड़ा तो लेफ्ट में होना चाहिए। What was this? This was the judgment which he got wrong and I got correct. मैं फ्रंट सीट पे बैठा था क्योंकि ये नया ड्राइवर है, कुछ गड़बड़ हुई तो आई एम एन एक्सपीरियंस, मैं काफी साल से ड्राइविंग करता हूँ तो इसको गाइड करूंगा। मम्मी डैडी तो को ड्राइविंग आती नहीं है,
तो उसको बोलने का बोला ओके जयेश थैंक्स, यस यस नो प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखना इतने लेफ्ट लेन में रहता है एक्सट्रीम फास्ट लेन में, तो तू एकदम डिवाइडर के क्लोज नहीं रख सकता, थोड़ा लेफ्ट से चलना। सो अपने लेन में लेकिन लेफ्ट से थोड़ा सा। सो दिस इज व्हाट इवेल्युएटिंग अ जजमेंट इज। मैंने उसका एक क्वालिटी रिव्यू करवा दिया, बोला कैसी चली गाड़ी वाला, नहीं गाड़ी मस्त चलाई, सिर्फ वो थोड़ा सा लेफ्ट लेन राइट लेन, एंड व्हेन यू आर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लेन तो तू थोड़ा बाजू में, आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नो, यू कैन नॉट बी वेरी क्लोज टू द एंड डिवाइडर्स इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ड्राइविंग। सो ये उसको मैंने तब एक्सप्लेन किया। सो आई वाज अ रिव्यूअर डूइंग अ रिव्यू फॉर हिज जजमेंट्स दैट वेर अ बिट रॉन्ग व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग ऐसी चीज है, जजमेंट गलत खत्म। वो ऋषभ पंत मरते मरते बचा है, अगर आपने उसका एक्सीडेंट देखा रहेगा तो उसकी गाड़ी ने कितनी पलटी मारी आपने देखा रहेगा, वो वीडियो तो इंस्टा पे भी आया था वो वीडियो, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट वाला देखा आपने देवजोत, उसकी गाड़ी ने कितने पलटी मारे देखा, उसके सब एयरबैग खुल गए रहेंगे और वो बच गया मर्सिडीज थी इसलिए। पूरे मर्सिडीज सेफ्टी फीचर्स में एक नंबर रहता है। कूल, लेट अस गो अहेड माय डियर सॉफ्ट टॉयज। या मैडम जी पढ़ना चालू कर दो, वो चार वो जो बोल्ड में ना उतना ही। An engagement quality review is an objective evaluation of the significant judgments made by the engagement team and the conclusions reached thereon, performed by the engagement quality reviewer and completed on or before the date of the engagement report. ओके An engagement quality reviewer is a partner, other individual in the firm, or an external individual appointed by the firm to perform the engagement quality review. Listed बस हो गया entity इतना, बस हो गया। एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर इज अ पार्टनर, other individual in the firm, or an external individual appointed by the firm to perform engagement quality review। कर अंडरलाइन इसको। और उसका काम क्या है, जजमेंट्स को रिव्यू करना। Why he is hired for evaluation of judgments, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कूल। नाउ 173 के नीचे ही वो चार बुलेट्स है, उसके ऊपर वाली लाइन मैं रीड कर रहा हूँ, चार बुलेट्स के ऊपर वाली लाइन। फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स वेयर an EQR, that is engagement quality review, is required, the engagement partner must, engagement partner मतलब main auditor लिखो उधर, या CA या ACCA who is an engagement partner, engagement partner must determine that an EQR has been appointed, that is engagement quality control reviewer, cooperate with the reviewer and inform other team members of their responsibilities to do so. Every member has to show his work to the reviewer so that he gives his unbiased opinion कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है गलत है। Discuss significant matters and significant judgments arising during the engagement with the reviewer. Note date the auditor's report, not date the auditor's report until completion of the EQR. Not date मतलब डेट नहीं लिखने का ऑडिट रिपोर्ट में जब तक EQR का काम खत्म नहीं होता। So audit report can only be issued after the EQR is finished, is what the hidden meaning of that 4 lines are. The last line is, ये चार बुलेट्स एक बार रीड कर लो दोस्तों फटाफट। Read these 4 bullets.
चलो आगे बढ़ते हैं. टर्न द पेज, 3 स्टार देना. किधर? एलिजिबिलिटी, पहली लाइन को, एलिजिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर. जो बंदा आपने जो काम किया उसका रिव्यू करने आएगा, 3 स्टार देना. उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम. जो लोग ऑडिट करेंगे, हाँ ये चल क्या रहा है, ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसका काम देखने कोई रिव्यूअर आ रहा है, तो जो रिव्यूअर आ रहा है वो उसके ऑडिट टीम का मेंबर नहीं हो सकता. मस्ट हैव द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग सफिशिएंट टाइम एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू परफॉर्म द रिव्यू. बरोबर है. जो रिव्यू करने आ रहा है वो मेरे से एक्सपीरियंस होना चाहिए. मेरे से कम एक्सपीरियंस रहेगा तो मेरा चेकिंग कैसे करेगा? एंड मस्ट कॉम्प्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. बाकी का मॉनिटरिंग एंड रिडम्पशन अगेन इज योर होमवर्क. मॉनिटरिंग मतलब टू कीप चेकिंग, दैट्स इट. सो ये था क्वालिटी एसे 220, जिसको मैंने एक्सप्लेन तो पूरा किया, लेकिन रीड करने को मैंने आपको बोल दिया है. ये 5 पेजेस जो एसे 220 पे, एसे 220 इज क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जहां क्वालिटी मैटर करती है, वेर एवर यू वांट टू present the best thing. Now you need to have the best resources, best technology in place. And for that, be on page 169, we need to monitor, evaluate, and give a annual review. Cool. I hope इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. ये होने के बाद इसके पीछे का पूरा चैप्टर अपना हो चुका है. Let us finish the last 3 pages and our chapter is over. आज ही हो जाएगा. Easy है. लॉज एंड रेगुलेशंस का आखिरी स्टैंडर्ड बचा है, विच इज जस्ट 3 पेजेस, 166, 167 एंड 169. नाउ कॉमन सेंस है कि व्हाई लॉज नीड्स टू बी कॉम्प्लाइड विद. एसे 250 सबसे पहले अंडरलाइन करना 166 के दूसरे पेज, दूसरी लाइन, पेज नंबर 166 के ऊपर से दूसरी लाइन, ISA 250 रिवाइज लिखा है. देख, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Laws and regulations are utmost important. किधर भी जाओ, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, या मुझे लॉ का कॉम्प्लायंस करना अच्छा लगता है. रीजन बीइंग लाइफ सबकी सुकून में रहती है. तू भी फॉलो कर, मैं भी फॉलो करता हूँ, लॉ दोनों खुश है. अभी कैसा है कि कुछ सोसाइटीज में बड़े बदतमीज लोग रहते हैं. नो वन, अभी मेरे सोसाइटी में पार्किंग इश्यूज टचवुड इतने नहीं है, सब लोग अपना एकदम डिसेंटली सब बिहेव करके. लेकिन मेरे दोस्त की नई सोसाइटी बनी है, उसमें मतलब वो हर दिन झगड़ा ही हो रहा है उधर, बिकॉज नोबडी इज अवॉइडिंग लॉज. एंड कुछ पॉलिटिशियन लोगों के उसमें फ्लैट्स है. ये सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है. ये जो पॉलिटिशियन लोग रहते हैं, आप पॉलिटिशियन हो तो आप लॉ को अवॉइड कर लो, आप ही उसकी धज्जियां उड़ाओगे तो कैसे चलेगा. अभी फॉर एग्जाम्पल देवजोत बड़ा पॉलिटिशियन है, मेरे पार्किंग में लगा दी, तो मैं तो बोलूंगा भाई तू तेरी गाड़ी हटा, तू रहेगा कोई बड़ा MP, लेकिन तू मेरे पार्किंग में, यू डोंट हैव अ राइट टू पार्क इन माय पार्किंग लॉट. ये मैंने खरीदा है बिल्डर से, तो तू क्यों मेरे घर लगा रहा है. उसको लगता है मैं MP, मतलब मैं नहीं, वॉटेवर कोई लोकल पॉलिटिशियन रहेगा, ऐसा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन लोकल पॉलिटिशियन भी उतने ही नाटक करते. सो व्हाट आई वांट टू से इज, ऐसे उसके प्रॉब्लम्स हो रहे. बोलते पॉलिटिशियन लोग कुछ बोल नहीं सकते. बोला ऐसा थोड़ी है यार, यू नीड टू टॉक, दिस इज माय पार्किंग प्लेस. फिर देवजोत ने मेरे पार्किंग में लगाया, मैंने रिद्धि के पार्किंग में, तो रिद्धि और मेरा झगड़ा हो रहा है. मैं बोलूंगा मैं क्या करूं, तू देवजोत को, वो बोलेगी मैं क्यों बोलूं, तू बोल. बराबर है ये, दैट इज नॉट रिद्धि's फॉल्ट. एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा यार ये पॉलिटिशियन है, ये इरिटेट करेगा, पता नहीं ये वो. सो सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे. तूने मेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी मेरी पार्किंग है, मेरी गाड़ी किसी और के पार्किंग में, वो फिर रिद्धि को झक मार के खुशी कोहली के पार्किंग में डालना पड़ा. फिर एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है. दैट्स व्हाई इफ एवरीबडी कॉम्प्लाइज लॉ, एवरीबडी इज हैप्पी. बरोबर है ना भाई, एवरीबडी कॉम्प्लाइज लॉ, एवरीबडी इज हैप्पी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ management is to ensure that all law registers are maintained, all trainings are in place, all laws which are required to be followed are complied with. Responsibility में कॉमन लिखो, compliance of all laws लिख दो उधर. Responsibility of management के बाजू में लिखो compliance of all laws. Kushi, start reading responsibility of auditors. Responsibilities of the auditor. The auditor must perform audit procedures to help identify non-compliance with the laws Underline and करना.
हेल्प आइडेंटिफाई नॉन कॉम्प्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. मेरा रोल है नॉन कॉम्प्लायंस को आइडेंटिफाई करना. दैट इज माय रोल. that Okay. may have a material impact on the financial statements. The auditor must obtain sufficient appropriate evidence regarding compliance with laws and regulations generally recognized to have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements. Okay. Example, completeness of a tax provision in accordance with tax law or the presentation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Correct. Very important. So ये लाइन वापस पढ़ना एक बार मैडम जी. Very very important line it is. Example, completeness of a tax provision in accordance with tax law or the presentation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Perfect. The auditor must perform audit procedures to help identify non-compliance with other laws and regulations that may have a material impact on the financial statements. Okay. Example, data protection, environmental legislation, public health and safety. Correct. Non-compliance in respect of such matters could affect the company's ability to continue as a going concern. Underline. कुछ लॉस का compliance नहीं किया तो it will affect the company's ability to continue as a going concern. Damn important. Okay. Or could result in the need for material liabilities to be recognized or disclosed. Audit procedures to identify instances of non. Okay, so what are those procedures which help me to identify non-compliances? कुछ comply हुआ नहीं है. सबसे पहले लेते हैं obtain a general understanding. General understanding से आपको समझ जाता है rules का compliance हुआ है कि नहीं. Second is inquiring with the management and TCW. सीधा management को पूछ, have you complied all laws? Third, inspecting correspondences. मतलब जो लिखित में लिखा रहता है पत्र, letters. Inspecting the correspondences is a very important piece for identifying non-compliances. So is there anything which is helping me to read, and that reading is helping me to understand whether any non-compliances have occurred or no? Remaining alert, underline मारना. And last is obtaining written representation. SFIT लिख के रखना बाजू में. SFIT. खुशी रीड करो, ये रीड करना है पूरा. बहुत इंपॉर्टेंट है. SFIT लिखिए. Audit procedures to identify instances of non-compliance. Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry, and of how the entity is complying with that framework. Okay. Inquiring of management and those charged with governance as to whether the entity is in compliance with such laws and regulations. Okay. Inspecting correspondence with relevant licensing or regulatory authorities. Okay. Remaining alert to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance to the auditor's attention. Okay. Obtaining written representation from the directors that they have disclosed to the auditors all those events of which they are aware, which involve possible non-compliance together with the actual or contingent consequences which may arise from such non-compliance. बरोबर है. उनसे लिखित में लो कि आपने आपकी जिम्मेदारी जो आपको डिस्क्लोजर्स थे वो आपने मुझे करवा दिए. Whatever disclosures you had to do, you have done it, is what I will taking writing from the directors. I want you to read these lines very nicely. All 5 bullets 5-star डालना, important है.
चलो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ पॉसिबल नॉन कॉम्प्लायंसेस, सो उसमें कुछ खासा अपना ज्ञान नहीं बढ़ने वाला. एंड ऑडिट प्रोसीजर्स में नॉन कॉम्प्लायंसेस आर आइडेंटिफाइड. खुशी वन टाइम रीडिंग भरना है. दिस स्टैंडर्ड इज ओके ओके. जितना फ्रॉड से इंपॉर्टेंट था उतना कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है. पढ़ो. Audit procedures when non-compliance is identified. Inquire of management of the penalties to be imposed. अंडरलाइन करना. ऑडिट प्रोसीजर्स में इंक्वायर विद द मैनेजमेंट. जब नॉन कॉम्प्लायंस होता है तो हम क्या करेंगे? विल डू एन इंक्वायरी. ओके. Inspect correspondence with the regulatory authority to identify the consequences. ओके, करस्पॉन्डेंस मतलब यही खत वत लेटर एक्सचेंजेस. सो इंस्पेक्ट करस्पॉन्डेंस को अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट. Inspect board minutes for management's discussion on actions to be taken regarding the non-compliance. इंस्पेक्ट बोर्ड मीटिंग्स को अंडरलाइन करो. बोर्ड मिनट, सॉरी. Inquire of the company's legal department as to the possible impact of the non-compliance. ओके, इंक्वायर कंपनीज लीगल डिपार्टमेंट. ये जनरल चीजें हर बार वही रहती है, इसमें कोई ऐसा गुआव तेरा ज्ञान नहीं बढ़ने वाला. सो these four things you do which is a possible outcome for non-compliances. अभी इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ reporting the non-compliance. How will you report? Auditor must report non-compliance to the management and those charged with governance unless prohibited by law or regulation. ऐसा कोई लॉ नहीं जो आपको रिपोर्टिंग से रोकता है. सो अंडरलाइन करना. रिपोर्ट नॉन कॉम्प्लायंस टू द मैनेजमेंट एंड TCWG. If the auditor believes non-compliance is intentional and material, the matter should be reported to directly TCWG. Understand that. Non-compliance intentional है, मतलब non-compliance कौन करता है? Management करता है. So if the non-compliance is intentional, then in that case ensure you are reporting directly to the TCWG. If the auditor suspects, third point, that management or TCWG are involved in non-compliances, matter should be reported to the supervisory board. Underline करना उधर. To the audit committee या supervisory board. मतलब नॉन कॉम्प्लायंस TCWG मैनेजमेंट ने खुद ने किया है तो उनका नॉन कॉम्प्लायंस उनको थोड़ी बताएगा, तो किसको बताएगा? सुपरवाइजरी बोर्ड को बताएगा. फोर्थ में अंडरलाइन कर लो एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन. मतलब बिकॉज ऑफ दैट यू आर ओके टू गिव एन एडवर्स और अ क्वालिफाइड ओपिनियन. एंड लास्ट वाला वेदर दे हैव एनी लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑन नॉन कॉम्प्लायंस. मैं लास्ट बुलेट वापस पढ़ रहा हूं. ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर वेदर दे हैव एनी लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट नॉन कॉम्प्लायंस टू द थर्ड पार्टीज. ये थर्ड पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ नॉन कॉम्प्लायंस रहेगा तो थर्ड पार्टीज को आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है. तो थर्ड पार्टीज कौन हो सकते हैं? सपोज मैं आई एम अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि छोटे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने का एक डायरेक्टर रहता है, तो वो सबने मिलकर गड़बड़ किया है, तो ऑडिटर कैन रिपोर्ट टू दैट स्मॉल शेयर होल्डर्स की छोटे शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन के लिए एक क्लॉज रहता है. नाउ दे कैन बी थर्ड पार्टीज टू ऑडिटर कैन रिपोर्ट कि देख आपने जिसको प्रोटेक्शन के लिए रखा था उसने ही आपको चूना लगाया. लास्ट वाला ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एडिशन टू द ISA 250. इसके अलावा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जनरल पॉइंट्स है ये. दीज आर नॉट वेरी मच इन लाइन विद द स्टैंडर्ड्स. ये जनरल पॉइंट्स है, पढ़ो. The IESBA Code of Ethics for Professional Accountants sets out ethical requirements in relation to an entity's compliance with laws and ये regulations. IASBA सब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है. आगे The ethical standard responding to non-compliance with laws and regulations provides guidance to accountants as to the actions that should be taken if they become aware of an illegal act committed by a client or ये क्या हेल्प करता है अपने को? अंडरलाइन करना. एक्शंस दैट शुड बी टेकन if they become aware of illegal act committed by the client or the employer. अगर कोई illegal action दिखती है तो हमको क्या करना चाहिए is what you need to understand. Okay.
The additional requirements have been introduced to address concerns that the duty of confidentiality was acting as a barrier to the disclosure of potential NOC/LAR to public authorities in the appropriate circumstances. Auditors were resigning from client relationships without NOC/LAR issues being NOC/LAR मतलब क्या? Responding to non-compliance with laws and regulations. तो मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, तो इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग दैट आई यूज्ड टू रिजाइन, जाने दे यार कौन पड़ेगा लफड़े में, बिकॉज मेरा काम बढ़ेगा. समझा क्या चल रहा है उधर? Auditors were resigning from client relationships without NOC/LAR, मतलब without reporting या without responding to the non-compliance with the laws and regulations. समझा वो लाइन? Instead of you reporting the non-compliance, you used to resign. तैसा ना होना चाहिए. इसलिए NOCLAR you can say as a shortcut. NOCLAR sets out responsibilities in relation to, पढ़ो पहला, responding to identified or suspected non-compliance. okay, Communicating identified or suspected non-compliance with other auditors. perfect, Documenting identified or suspected non-compliance. perfect, बस हो गया. So responding to the identified non-compliance, communicating and document. RCD लिख दे उधर, RCD. RCB याद रहेगा ना, तो RCD याद रखना. RCD, responding, communicating and documenting. So this was the chapter on planning and audit of financial statement. नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं ये मैं बताऊंगा आपको. तेरा टेस्ट है तो मैं तेरे को हेल्प करूंगा. आई वांट यू टू कम प्रिपेयर्ड. ये जो मैंने चीजें पढ़वाई थी, तेरा वो क्या क्वालिटी कंट्रोल वाला 4-5 पेज, वो तो रीड करके ही आना है. कम प्रिपेयरिंग एंटायर चैप्टर नंबर 1, छोटा चैप्टर है 4-5 पेजेस का, पूरा पढ़ के आना. उसका 1-2 केस लॉस करना है अपने को. तो आई वांट यू टू कम प्रिपेयरिंग विद दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1. समझा मैंने क्या बोला? एक बार चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करके आना. अगर हो सके तो 2 भी करना, बिकॉज उस पे मुझे केस लॉस करने, ऊपर से देखना है 15-20 मिनट के लिए. बट चैप्टर 1 and 2 थोड़ा ऊपर से, बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू. टेस्ट जब रहती है ना तो मार्क्स जोरदार आने चाहिए. अंडरस्टैंड? हमारा स्ट्रेटेजी कैसे रहेगा? अभी पहले 6 चैप्टर्स, अभी एक आधा लेक्चर में केस लॉ पे भी डालूंगा. वी विल ट्राई टू फिनिश एंटायर थिंग बाय 31st of Jan, द टीचिंग पार्ट. आई रिपीट, आज 10 तारीख है, 20 तारीख के बीच में अगर मैं अभी कैलेंडर खोल के रखा, आज का लेक्चर है, देन 1, 2, 3 more lectures in this week. 12 तारीख को लेक्चर है, 14, सो 2, देन 4 and 4 8 9 10 11 12 12 odd lectures still in the month of Jan. 12 odd lectures should be ideal for me to finish. Still 12 lectures I'll take. 10 तारीख है ना आज, तो फिर भी 12 एक लेक्चर्स लूंगा जिसमें मुझे 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 are not chapters that are required to be taught. ये पढ़ाने के चैप्टर नहीं है. समरी ऑफ केसेस, क्वेश्चन आंसर्स, तो 12 तक अपने को पहुंचे. तो एग्जैक्टली हाफ सिलेबस हो गया है, हाफ बचा है. लेकिन उस हाफ में 2 चैप्टर्स काफी बड़े हैं. बट 12 लेक्चर्स में 6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, बिकॉज 3 चैप्टर्स को 2 लेक्चर्स पूरे भी नहीं लगेंगे. Whatever, we are not going to rush with the syllabus for sure. We will not be rushing with the syllabus. ये पक्का है, ठीक है? तो परसों आप ये करके आना. मैं एक 20 मिनट्स केस लॉ पे डालूंगा. साउंड्स गुड? आपको समझा? या हाफ एन आवर मैं केस लॉ पे डालने वाला हूँ, so that you start preparing yourselves. तो पहले 2 चैप्टर्स पढ़ के आना, अच्छे से रीड करके आओ, because I want you to start studying rigorously. 7th March एग्जाम डेट है, जोरदार पढ़ाई चालू कर देना. तो पहले 6 हो गए. एविडेंस का चैप्टर 1.5 लेक्चर में हो जाता है, 1.5 odd लेक्चर्स में. सो परसों का एक 20 मिनट छोड़ दे, तो करीब 1.5 घंटा पढ़ाई है. आगे के 15-20 मिनट का एक केस लॉ करवाऊंगा मैं. छोटा वाला है, बड़े वाले केस लॉ को थोड़ा टाइम जाएगा, छोटा वाला केस लॉ है.
So this is what we will be doing, and we will start with the chapter of evidence on day after tomorrow when we will meet offline. नहीं sorry online. ठीक है, और मैं पूरे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लूंगा बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है. इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, विले पार्ले में एक लेक्चर ऑफलाइन और वही माटुंगा में रिपीट. सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने ऑनलाइन में तो हमारे वो 2 लेक्चर्स हो जाते हैं. लेक्चर्स उतने ही लूंगा मैं, बट ज्यादा फिर मिलके भी कुछ ऐसा यू एंड मी मीट. तो जब केस लॉ करना है तभी मैं अभी ऑफलाइन रखने वाला हूँ. सो ये वीक में मिलेंगे, उसके अगले वीक में भी मिलेंगे ऑफलाइन, और उसके बाद वाले वीक में आई प्लान अकॉर्डिंगली कि अभी ऑफलाइन कितना मिलना है उस पे देखता हूँ मैं. पहले पोर्शन कंप्लीट करेंगे. साउंड्स गुड? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर सॉफ्टीज? करेक्ट? ओके. सो ये वीक में एज शेड्यूल्ड है ऑफलाइन वो हम मिलने वाले. सो या उसके बाद वाले वीक में मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं ऑफलाइन मिलना है नहीं मिलना है. we'll put that offline lectures into online so that we can keep 5 lectures in a week then. Cool. आप पढ़ के आना first and second, and on that note we will meet on a Thursday evening same time. Bye. सर सर बोलो. सर एक डाउट था सर, जो रिस्क चैप्टर है ना, हाँ बोल. उसमें जो ऑडिट रिस्क ऑन रिस्पॉन्स होता है, तो टेक्स्ट बुक हम्म. के और किट दोनों ने ना सर बहुत सी जगह पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या एज रिसीवेबल्स, जो लोगों ने रिव्यू डाला है सर. सो मैं इंस्पेक्ट डालता हूँ, अगर वो रिस्क असेसमेंट से जाएंगे तो AEIO. हाँ, that is okay. That That's is okay. okay ना सर? Review के बदले तू yeah, it's okay. बिकॉज It's okay. टेक्स्ट बुक ने लिखा यू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. Yeah, ठीक है. I got what you are Inspect ठीक है saying. ना? That's fine. That's okay. बरोबर है. ओके सर, थैंक यू. All right guys. Yeah, perfect. See you 5:45 day after tomorrow. Bye bye.